Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about the Gemini Ascendant and how the month of August 22 is going to pan out for the Gemini Ascendant people. Let us first start with the Ascendant Lord Mercury passing through the third house. It means that you will need to put in a lot of efforts in this month in order to reach your goal because the third house shows efforts and the daring that person does in his or her life. Third house also showcases younger siblings, so you need to put efforts in improving relationship with them. And third house also represents the short-term travel. So people who are in the professions that are indicated by third house, such as marketing, public relations, any kind of a communication related job, printing presses, all of them will also get opportunities to travel in this month, but that travel will be related to work. Otherwise, as well, short term travel is indicated by this placement of ascendant in the third house in the month of August. Let us now look at other planets one by one. Rahu is passing through the 11th house. Placement of Rahu in 11th house indicates two things in the birth chart. First of all, if the person goes through Rahu Mahadasha, then they see a tremendous upliftment in their financial status during such times. But Rahu passing through the 11th house also means that they need to be careful when dealing with their friends or within their social circle because Rahu's placement here showcases betrayal by friends, and such people are advised to develop the ability to judge their real friends from those who are just clinging for some sort of benefit from them. Ketu is going through the fifth house for Gemini ascendant people. Whenever Ketu passes through one house, it has the ability to make a person disengage from all the significators that are indicated by that particular house. In this case, fifth house indicates your progeny, your ability to speculate, and for students, it represents their learning. So, Ketu is spoiling all the significators by sitting here, but if you have to look at within the month of August, what are the better days to excel in these things, then they would be 13th to 15th of August and 24th to 26th of August. So it is advised that a black dog is fed on every Wednesday to avoid any malefic effects that are generated by this type of Ketu. But overall, Ketu's placement here would mean that you cannot really invest in the share market because Ketu will make sure that you end up on the losing side. Let us look at Jupiter. Jupiter is a very important planet for Gemini ascendant people because it owns the seventh house of marriage, business, and business partnership, as well as 10th house of action or profession. Now, Jupiter is passing through its own house and is aspecting the fourth house. What it means is that you can plan for buying a property or an immovable asset till the time Jupiter is stationed in the 10th house of your horoscope, and this placement is going to be there till April 2023. In the month of August, if you are planning to buy a property, then all the legal formalities should be completed in the first phase of August, that is till the 10th of August. Otherwise, post that, it is better not to engage in any kind of a documentation of such property. Jupiter's fifth aspect is also falling on the second house, and as a result, you will see your desired cash flow coming in the month of August. Work wise, also, Gemini Ascendant will see a good time because Jupiter passing through 10th house does give you that kind of a benefit, but this benefit will be much higher for people who are right now undergoing Jupiter's MD. People who are in service or jobs, they will see good time at the workplace because both the Mars and Jupiter are aspecting the sixth house. Mars is going to aspect its own house through seventh aspect, and Jupiter is aspecting the sixth house through its ninth aspect. And that is why it will be a very good month for people who are in the jobs. If we have to figure out what are the best dates to shine at the workplace, that will be 5th and 6th of August and the end of the month. So 27th, 28th, 29th, and 30th of August
These 6 days in total would be very good time frame for people who are in jobs. Jupiter's aspect also means that you will experience good health in the month of August. People who are in the business will also see a pretty good time because the seventh house lord, which is Jupiter, is placed in the 10th house. So business and the action taken in the professions both get correlated by Jupiter's placement here in the 10th house. Gemini ascendant is also very peculiar because Mars owns both the 11th house as well as the 6th house. From 11th house, we see gains in general, and 6th house means health, disputes, or service. So, if the Gemini ascendant people get into any kind of a dispute or tangle, and if Mars is not well placed in the horoscope, then these disputes have a direct impact on their gains, and that is why it is always advised for Gemini ascendant people not to get into any kind of a fights or dispute with people, because that leads to animosity and their gains gets directly impacted because of this kind of placement in their birth chart. Saturn is in a retrograde position till 22nd of October, and at the moment it is transitioning through its own sign in the 8th house. So placement of the 8th lord in the 8th house is considered good or bad depending on what approach do you take. So people who have a research kind of an orientation, that is people who make decisions by taking into account all kind of data facts that are in front of them, do some digging on their own and then take a decision, Saturn will always reward them when it is posited in such position. So all the Gemini ascendant people, my advice would be that till the time Saturn is placed in the 8th house till January 2023, they better look at all the facts in front of them before they take a decision, and you will see the rewards slowly percolating in by such placement. So please look at all the possible facts and figures before you take the decision. Now there are also certain days in the month when person needs to be very careful. For Gemini ascendant, these dates are 3rd and 4th of August, 16th to 17th of August, and 21st and 22nd of August, in total 6 days. So overall, it is a month of putting in a lot of efforts, and Gemini ascendant people can reap the benefits through a very good aspect of Jupiter that is present in their 10th house. So this was the summary for the month of August. If you have liked my video, please do subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं और हम देखेंगे कि अगस्त 2022 का महीना मिथुन लग्न वालों के लिए कैसे साबित होगा। सबसे पहले लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश यहाँ पे तृतीय भाव से गुजर रहे हैं। तृतीय भाव से हम व्यक्ति के प्रयास करने की क्षमता देखते हैं, उसमें कितनी हिम्मत है वो देखते हैं। इसके अलावा जो भी छोटी जर्नीज होती हैं जिन्हें हम शॉर्ट टर्म ट्रैवल बोलते हैं वो, और व्यक्ति की कम्युनिकेट करने की क्षमता भी देखते हैं। इसके अलावा आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंधों को भी देखा जाता है। तो जब लग्नेश तृतीय भाव से गुजर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अपने प्रयास काफ़ी हद तक बढ़ाने पड़ेंगे अगस्त में, अगर आपको कुछ अच्छे परिणाम देखने हैं तो। इसके अलावा अगर आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ टच में रहते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। और जितने भी लोग तृतीय भाव से संबंधित प्रोफेशंस में हैं, यानी लेखक हैं, मार्केटिंग में हैं, कम्युनिकेशंस की जॉब करते हैं, पब्लिक रिलेशंस में हैं, ब्रोकरेज फर्म्स में हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। हो सकता है कि इनको अपने कार्य की वजह से इस महीने में ट्रैवल करना पड़े, या फिर कुछ पर्सनल काम की वजह से भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन घूमने फिरने की काफ़ी संभावना है अगस्त के महीने में मिथुन लग्न वालों के लिए। एक बार राहु पे नजर डालते हैं। राहु 11वें स्थान से गुजर रहे हैं, जो कि कालपुरुष कुंडली में राहु के लिए सबसे अच्छी पोजीशन कही जाती है भाव के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जब राहु गुजर रहे हैं तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 11वें भाव से आपके दोस्त और सोशल नेटवर्क देखा जाता है, आपके बड़े भाई बहन देखे जाते हैं। तो राहु का यहाँ पर प्लेसमेंट हमेशा दोस्तों से किसी तरह की धोखाधड़ी दिखाता है, इसलिए आप सावधानी से अपने दोस्तों को देखिए कि उनमें से कौन से आपके सच्चे मित्र हैं और कौन से आपके साथ खाली अपने फायदे को लेकर जुड़े हुए हैं। राहु का यहाँ पर प्लेसमेंट अगर जन्म कुंडली में होता है और व्यक्ति को राहु की महादशा आ जाए,
तो उसके लिए बहुत संपन्नता लेके आती है वो महादशा। लेकिन उस व्यक्ति को भी जिसकी जन्म कुंडली में राहु 11वें भाव में है, उसको हमेशा दोस्तों से किसी तरह का खतरा बना रहता है, और वो तो सतत बना रहता है क्योंकि वो उसकी जन्म कुंडली में है। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिट का जाता हुआ राहु भी वो सब करवाने में सक्षम है। इसलिए अपने दोस्तों के साथ बात करते समय बहुत सावधानी पूर्वक बात कीजिए। केतु यहाँ पे पंचम भाव में बैठा हुआ है, राहु के जस्ट उल्टी पोजीशन में। केतु जहाँ भी बैठता है उस भाव से जितने भी कारक होते हैं उनसे व्यक्ति को विरक्त कर देता है। तो यहाँ पे पंचम भाव से आप विद्या को देखते हैं, व्यक्ति की स्पेक्यूलेशन की क्षमता को देखते हैं, सट्टेबाजी की क्षमता को, और व्यक्ति के रोमांस को देखते हैं, उसके बच्चों को देखते हैं। तो केतु यहाँ पे बैठ के व्यक्ति को उन सभी कारकों से विभक्त करने का कार्य करता है। और व्यक्ति को बहुत सावधान रहना पड़ता है जब भी केतु जिस भाव से गुजरता है, क्योंकि उससे व्यक्ति का मन भरने लगता है जब तक केतु वहां बैठा रहता है। तो इन लोगों के लिए यही सलाह है कि शेयर बाजार में ना घुसें, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे अगस्त के महीने में। इसके अलावा अगर वो लोग फिर भी पांचवें भाव से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं तो 13 से 15 अगस्त और 24 से 26 अगस्त का समय उनके लिए फिर भी अच्छा रहेगा। हो सके तो अवॉइड ही कीजिए। और अगर केतु को आपको शांत करना है तो काले रंग के कुत्ते को या तो पाल लीजिए घर में, या फिर आप उसको हर बुधवार को खाना खिलाइए, तो भी केतु के काफी हद तक जो बुरे प्रभाव हैं वो कम हो जाते हैं। अभी एक नज़र हम गुरु पे डालते हैं। गुरु मिथुन लग्न वालों के लिए सप्तम और दशम भाव का मालिक होता है। सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठना बहुत अच्छी स्थिति कहलाती है। वैसे भी गुरु अपनी ही राशि में यहाँ पर बैठा हुआ है, और यहाँ से अपनी सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देख रहा है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं या किसी भी तरह का कोई भी इमूवेबल असेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो जब तक गुरु यहाँ बैठे हुए हैं यानी कि अप्रैल 2023 तक, तब तक आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन जब भी कभी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें तो हमेशा उसके कागज़ों की जांच कर ले, क्योंकि यहाँ पर बुध की ही राशि पड़ती है चतुर्थ भाव में, कन्या राशि, और बुध जो है कागजी कार्रवाई को दिखाता है या डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है। तो इसीलिए मिथुन लग्न वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो प्रॉपर्टी संबंधित कागज की हमेशा जांच पड़ताल कर लें खरीदने के पहले। नहीं तो ये उनके लिए कई बार उल्टी स्थिति बन जाती है कि वो प्रॉपर्टी में कुछ डिस्प्यूट आ जाता है। गुरु की पांचवी दृष्टि द्वितीय भाव पर भी पड़ रही है, 1 2 3 4 5, और द्वितीय भाव से आपका परिवार और स्वर्जित धन भी देखा जाता है। तो अगस्त के महीने में जैसा भी आपको कैश फ्लो चाहिए होगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो कुछ अच्छा पैसा मिलने की संभावना इनमें डेफिनेटली बनती है इस समय में। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा समय रहेगा, क्योंकि सप्तमेश स्वयं दशम भाव में बैठे हुए हैं। जिन लोगों की गुरु की महादशा चल रही है उनको और भी अच्छा परिणाम मिलेगा अगस्त के महीने में। सारे लोगों की तो ये महादशा नहीं चल रही होगी। अगर आप जॉब या सर्विस में हैं तो भी अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि मंगल जो कि छठवें भाव का स्वामी है वो सातवीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है, और गुरु भी अपनी नवी दृष्टि से छठवें भाव को देख रहे हैं। इसलिए छठा भाव बहुत अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि ये मजबूत हो जाएगा। स्वयं राशि स्वामी उसे देख रहा है और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए 5 और 6 अगस्त और 27 28 29 30 अगस्त, ये 6 दिन वर्क फ्रंट पे बहुत अच्छे साबित होंगे। लेकिन ओवरऑल भी नौकरी करने वालों के लिए अगस्त का महीना अच्छा ही रहेगा, क्योंकि गुरु अपनी दृष्टि छठे भाव पर डाल रहे हैं, तो व्यक्ति की सेहत भी अगस्त के महीने में अच्छी रहेगी। और जैसा मैंने पहले बताया कि जितने भी लोगों का स्वयं का बिजनेस है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सप्तम का स्वामी दशम भाव में बैठा हुआ है। तो दोनों ही भाव आपस में जुड़ गए, बिजनेस करने का और कर्म स्थान का आपस में संबंध हो गया। अभी अगर आप शनि को देखते हैं तो शनि वक्री हो गए यहाँ पे अष्टम भाव में बैठे हुए हैं खुद की राशि में। तो जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम घर में ही बैठता है तो व्यक्ति को एक सलाह दी जाती है कि आप किसी रिसर्चर की तरह सोचिए। जैसे जो भी रिसर्च में लोग होते हैं वो सारे पहले बातों को इकट्ठा करते हैं, डेटा को सारे गैदर करते हैं, और उसके बाद सारे आपके फैक्ट्स देखने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। तो अगर आप भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो सोच समझ के सारी स्थिति का
अच्छे से अंदाजा लेते हुए सारे तथ्यों की जांच परख करके उसके बाद अपना निर्णय लीजिए। और आप ये अप्रोच जनवरी 2023 तक बना के रखिए, जब तक शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, आपको इससे डेफिनेटली लाभ होगा। मिथुन लग्न वालों के साथ एक बड़ी पेक्यूलियर सी बात होती है कि मंगल उनके छठे और 11वें भाव का स्वामी होता है। 11वें भाव से हम सारे लाभ देखते हैं, और छठा भाव आपका हेल्थ का, वाद विवाद का, शत्रुता का, झगड़ों का भी स्थान होता है। लेकिन अब क्या होता है, अगर मंगल की स्थिति कुंडली में, जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है, तो ये व्यक्ति जब भी झगड़ों में पड़ते हैं या दुश्मनी मोल लेते हैं, तो उनके लाभ स्थान को भी हानि पहुंचती है, क्योंकि ये दोनों भाव जुड़ गए हैं मंगल ओनर होने की वजह से। इसीलिए हमेशा ये बोला जाता है मिथुन लग्न वालों के लिए कि झगड़ा टालिए, क्योंकि झगड़े का सीधा प्रभाव उनके लाभ स्थान पर पड़ता है। अगर मंगल की स्थिति बहुत जबरदस्त हुई कुंडली में, अच्छा खासा मजबूत हो, तो इन लोगों को झगड़ों से लाभ भी होता है। तो कई वकीलों की भी कुंडली में आपको ये योग देखने को मिलता है कि जितना झगड़ते हैं उतनी उनकी आमदनी बढ़ती जाती है, लाभ बढ़ता जाता है, लेकिन ये सबकी कुंडली में नहीं होता। इसीलिए मिथुन लग्न वालों को हमेशा बोला जाता है कि आप लोगों के साथ शत्रुता मत कीजिए, नहीं तो भारी पड़ता है मंगल की वजह से। अब कुछ ऐसे दिन हैं जब व्यक्ति को सावधान रहना पड़ता है। तो मिथुन लग्न वालों के लिए ये दिन अगस्त में 6 दिन है: 3 और 4 अगस्त, 16 और 17 अगस्त, और 21 और 22 अगस्त। ये 6 दिनों के अलावा बाकी दिनों में आप देखेंगे कि काफ़ी आपके लिए अच्छा महीना जाएगा अगस्त का। तो ये आपका टोटल समरी था अगस्त के महीने के लिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।